Okay, I think that's all the people who have joined. So I'll at least start with the just a quick video introduction of the developer in the meanwhile, and so that more people can keep joining us in due time. So I'm sure some of you must be wondering why I've shown a video of Vilas Javadekar giving a possession of one of their old projects. But to start with, I wanted to give an impression about what kind of developer VJ is. एक कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद VJ डेवलपर्स के बारे में पता नहीं होगा जिनके लिए ये डेवलपर नया है. तो I just want to start with an introduction जहाँ पे Vilas Javadekar is one of Pune's most reputed developers. They have been, you can see from the video कि आज पुणे में कोई भी ऐसा डेवलपर नहीं होगा जो अपने पोजीशन के लिए सब फैमिलीज को एक साथ बुला के उन्हें इतना बड़ा इवेंट कराए. द रीजन बीइंग मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आर अफ्रेड क्योंकि या तो उन्होंने प्रोजेक्ट डिले किया रहता है या कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होता है या एमिनिटीज रेडी नहीं होती है, बिल्डिंग बन चुकी होती है. देयर आर सो मेनी थिंग्स. बट जावड़ेकर इज वन सच डेवलपर हु दे मतलब वो छाती ठोक के आपको बुलाएंगे सबको और बताएंगे कि ये हमने बनाया है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, जो कमिट किया था उससे बेटर ही डिलीवर किया है. दे हैव ऑलवेज बीन डूइंग दैट फॉर द लास्ट आई थिंक 7 odd years that I've been working with them. उससे पहले भी करते ही आए बट मैं उनके साथ 7 साल से काम कर रहा हूँ एंड आई हैव सीन देम डिलीवर इन अ रियली व्हाटएवर दे हैव कमिटेड वो हमेशा उन्होंने किया है. ये मैटर करता है बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग यू आर लुकिंग फॉर बाइंग अ प्रॉपर्टी फ्रॉम सम डेवलपर टुडे एंड व्हेन यू आर अटेंडिंग अ वेबिनार अबाउट अ डेवलपर जहाँ पे आपको उनका एक्चुअल ऑफिस नहीं देखने मिल रहा है. तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू स्टार्ट विद ऑन अ नोट जहाँ पे you get to see what they are at least delivering, what their past record is. On the same note, I would also like to show you जो आज हमारा टॉपिक है प्री रेंटेड इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में एक वीडियो है. वन ऑफ द एक्स कस्टमर्स जिन्होंने ये प्रॉपर्टी परचेज किया था, सबसे इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट कस्टमर्स हु परचेज दिस लास्ट ईयर अगस्त में, उन्होंने भी सिमिलरली वेबिनार अटेंड करके बाद में साइट पे जाके देख के, उस समय थोड़ा लॉकडाउन खुल गया था आई थिंक, तो दे हैड सीन दैट एंड देन दे फाइनलाइज्ड. So just wanted to give you some insights from a past customer क्योंकि शायद उससे भी थोड़ा एक आइडिया आता है कि क्या प्रोडक्ट के बारे में लोगों का सोचना है. People like you who is an investor, so probably that might help you in connecting better. It was completely financial decision. Basically, we were looking for an investment where we can park some money, and it should be safe, okay, because it's a hard-earned amount, and you should be getting something in the leverage also in the meanwhile.
So we were looking for this option from the financial perspective. I belong to Bihar, but I am got settled in Pune since last 10 years. I'm a data analyst by profession in British Petroleum. And I got to know about this Shore unit, like Happiness Street, from one of our ex-neighbors who had bought in Yashwan Hinjewadi. Okay, so I went for the flat systems, but I got to know this opportunity from them that there is something called as residential come commercial. So I said, wow, that's fantastic, and it takes lesser amount of capital, and then you have a fixed amount you will be getting as a rent for 10 years. So that will be a good amount of money. It's a good investment. Whatever money you have, it's a good way to park it somewhere. Okay, so, and also the name VJ, the name is itself sufficient. I already own 2 homes in Pune. Okay, and I've been knowing about VJ since long, but I did not get a chance to deal with them because I was into other things, and mostly I was out of India. So I heard about it from one of our friend. And they said, like, VJ, it binds with your emotions. Okay, you have to integrate your own home, and that VJs allow you to see your home getting constructed, put your own bricks while being at home. So that's really connecting when you buy your home. No other builders do that. Okay, and also from the documentation perspective, from the legals, everything, you don't need to worry. If it is VJ, you don't need to worry about anything. So I personally checked it at first, and then I found it fully through, and I found the support system. Basically, the staffs, they were all good. They were all very supportive, always answerable. So it was a standout among all the builders in Pune. एक्चुअली कंसेप्ट ही बहुत पसंद है हम लोगों को. हमने बहुत सारी चीज़ें देखी इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे फ्लैट्स 1 BHK 2 BHK, बट उससे कहीं ज़्यादा मीन्स अलग था ये. हम जब फर्स्ट टाइम गए, हमें एक्चुअली शॉप लेना था, बट वो मीन्स शॉप का जो कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कॉस्ट तो हमारा मैच हो रहा था यहाँ पे. तो देन हमने ये डिसाइड किया, फिर ले लिया. फिर हमने हमारे फ्रेंड्स को भी बताया. बहुत लोगों को कंसेप्ट पसंद आई, बट मीन्स किसको पसंद आता है किसको नहीं, तो उन्होंने शायद डील की कि नहीं ये तो पता नहीं, बट उन तक हम नहीं पहुँचा है वो चीज़. बट हमें काफ़ी अच्छा लगा और हम सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से. So welcome everyone, a very warm welcome and good morning to all of you, and thanks for joining us on this Saturday morning. First of all, let me introduce myself. मेरा नाम Karan Awad. I am co-founder of Decor Spaces. Basically, Decor Spaces is a marketing firm. We deal into a lot of real estate properties. Some of you may have previously interacted with me many times, me or someone from my team. And this is one such project which we have been recommending for quite a while now. They've just come up with the new, we have some new inventories, new financial options for investment. So that's why we are conducting this webinar to, reach out to a maximum number of people at the same time. Having said that, I have Siddesh with me, who is joining me as a co-host for this webinar. Siddesh is representing the Villa Javadekar team, and I will just unmute him so that he can introduce himself. That will be better, I think. Hi guys, good morning. Karan, are you able to hear me? Yes, Siddesh, you can speak. Hi, good morning all. So this is Siddesh here. I'm the stage manager at Villa Javadekar Developers, and of course I will be a part of this webinar. I would request Karan to take this over, and if you have any questions, anything related to the product, it will be an honor for me to answer all the questions. Thanks, Siddesh. So I will connect again at the end of the webinar. We'll be having a Q&A, so we can discuss it then. Sure. So having introduced myself and Siddesh, I would now take, before we move into the webinar presentation about the project, I want to talk a little bit about personal finance. So, I mean, ये पूरा आपको जो messages आए होंगे हमारी तरफ से, पूरा हमारा communication and marketing efforts have been in the direction of personal finance planning. That is, ऐसे एक investment क्यों करना चाहिए? Every one of us, I see most of us are in an age group of, particularly 28 से 30, mid 30s या late 30s में. Most of the people who are attending this webinar are in this age group, and we all have certain long-term goals.
मतलब है, हर किसी का कुछ एक एम्बिशन है, कुछ एक गोल है, बट व्हेन आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, हर किसी का कुछ एक प्लान है, लेकिन उसके लिए कुछ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट या कुछ एक ड्रीम्स है, लेकिन देयर आर नो प्लान्स. एंड रिसेंटली आई हैड आई अटेंड लॉट ऑफ सेशंस, मोटिवेशन बोलो या सेल्स सेशन, जिसमें एक लाइन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, विच वाज a dream without a goal is just a dream. So when we have certain dreams, we need to work towards it to achieve that dream basically. तो वो करने के लिए कुछ एक decisions, कुछ एक investments आज करने हैं. Now there are two ways people invest when we speak of long term finance. या तो लोग insurance बना के रखते हैं, एक endowment plan, or people make investments in different types of assets. Insurances I will not speak because particularly it's not my topic to speak, nor am I the right person to talk about it. I have my own मेरे कुछ एक पर्सपेक्टिव्स है जो I don't think with match with most of the people. I feel insurances are not investments, so we should not look at them from that perspective. Investment has to be a separate topic altogether. And उसके लिए अगर हम देखेंगे तो what are the goals? Let me just talk about that. We have, it could be anything like buying your first home या second home से लेके तो एक luxury car हो सकता है, कहीं long trip पे जाना है या annual trips करते रहने हैं, that you want to send your parents on a trip. There could be many reasons, there could be many plans you have, but एक identify अगर मैं करूँ तो एक 20 से 25 लाख का हमारा एक requirement है जो अगले 10 साल में हमें fulfill करना है. So how do you build up to that? There could be, when I speak of the different types of assets, a secured asset, when I say secured asset, तो अभी there are different types of assets that one can invest in, but I'm pretty sure कोई भी 5 लाख रुपए आपके एकदम से आप किसी एक शेयर खरीदने में नहीं डाल दोगे. You would put it into something which is more secure, which is less volatile, which जिसका कंट्रोल आपके पास है. ऐसे टाइप के एसेट्स की हम बात करें तो आता है फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट. तीन ही ऐसे एसेट है जो मतलब आपको सिक्योर्ड है, जो आपको एक फिजिकल एसेट लॉक्ड है. अगर मैं सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट्स की बात करूं तो एक एनुअल इनकम उसमें से हमें नहीं मिलता है. वी गेट एन अप्रिसिएशन, आज 4.5 से 5% के आसपास आपको फिक्स डिपॉजिट पे रिटर्न्स मिलते हैं, बट यू डोंट गेट एनी एनुअल इनकम आउट ऑफ इट. जो है वो कैपिटल अप्रिसिएशन है बस. आपका लोन उस पे आपको मतलब यू कैन नॉट टेक अ लोन टू बाय अ फिक्स डिपॉजिट. आपके पास जो सेविंग्स है आप बस वही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. टैक्स बेनिफिट की बात करें तो एफडी में देयर इज अ मिनिमम लॉक इन पीरियड, तो ही आपको टैक्स बेनिफिट है. अदरवाइज एफडी में आपको जो भी आपका गेन्स होता है उस पर टैक्स लगता है. देन लिक्विडिटी है. फिक्स डिपॉजिट, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल, आई डोंट नो अपनी जनरेशन में शायद कम है, लेकिन हमारी पिछली जनरेशन देखेंगे तो दे इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट विद द सिंपल रीजन कि जब भी कोई इमरजेंसी तो पैसा निकाल सकते हैं. That is the only reason why fixed deposits are preferred even when the returns are very low, because the risk is very low. गोल्ड की बात करते हैं तो सेम एज फिक्स डिपॉजिट, ना कुछ एनुअल इनकम आता है, ना उसमें आप लोन ले सकते हो. गोल्ड खरीदने के लिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, गोल्ड खरीदने के लिए आप लोन नहीं ले सकते हो, ना कोई उसमें टैक्स बेनिफिट होता है. लिक्विडिटी भी लिमिटेड है. व्हेन आई से लिमिटेड, इट मींस कि आप गोल्ड आपने अगर खरीद के रखा है तो आप जब चाहो तब नहीं बेच सकते क्योंकि उसका प्राइस आप नहीं कंट्रोल कर रहे हो. मार्केट में जो भी प्राइस है उसके हिसाब से ही आप बेचोगे. अगर मार्केट में आपका गोल्ड का प्राइस उस समय में कम है तो यू वुड प्रोबेबली नॉट वांट टू सेल इट, यू वांट टू सेव इट फॉर अ बेटर प्राइस. तो लिक्विडिटी उसकी काफी लिमिटेड है. कैपिटल अप्रिसिएशन व्हेन आई से सब्जेक्टिव, इट मींस कि मार्केट ड्रिवन है. So it can be high, it can be low. It is very difficult to predict what kind of market gold will give you, returns gold will give you. And risk तो बहुत high है क्योंकि यार सोना रखेंगे कहाँ पे, मतलब कितना सोना रखेंगे और रखेंगे कहाँ पे, उसका चोरी होने का डर हमेशा रहता है. That is one of the biggest problem of having gold as an investment, कि उसका रिस्क बहुत ज्यादा है से उसको स्टोर करने का. And then we come to real estate. अभी रियल एस्टेट में लोग क्यों प्रीफर करते हैं आज, आई मीन रिसेंटली आई वाज रीडिंग अ स्टैट कि इंडिया में आज भी 80% ऑफ पीपल प्रेफर इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट. उसका रीजन क्या है? एक, आप उसका एक एनुअल इनकम आते रहेगा जिसे हम रेंटल इनकम बोलते हैं. आपको उसमें से आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन ले सकते हो. सम पीपल थिंक कि लोन लेना एक लायबिलिटी है, बट अगर आपने उसे सही तरीके से यूज किया तो आई विल प्रूव यू इन द कमिंग स्लाइड्स कि हाउ लोन लेने से आपको एक्चुअली लायबिलिटी नहीं, इट इज एन एडवांटेज. फिर टैक्स बेनिफिट्स है क्योंकि आप उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करते हो उस पर आपको वेवर मिलता है आपके इनकम टैक्स में. उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन है तो एलटीसीजी टैक्स में भी बेनिफिट है इंडेक्सेशन की वजह से. देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स व्हेन यू लुक एट टैक्स बेनिफिट्स फ्रॉम रियल एस्टेट. लिक्विडिटी नहीं है. अगेन आई कंप्लीटली एग्री, लिक्विडिटी बहुत लिमिटेड है रियल एस्टेट की, क्योंकि इवेंचुअली ये आपके हाथ में है कब बेचना है. प्रॉब्लम ये है कि जब हम बेचने की बात करते हैं रियल एस्टेट तो वी हैव अ सर्टेन प्राइस एक्सपेक्टेशन. अगर मेरा प्राइस एक्सपेक्टेशन सामने वाले से मैच नहीं हो रहा है तो वो बेचना मुश्किल हो जाता है. एंड दैट इज वेयर द लिक्विडिटी लिमिटेशन इज. अगर आपको
बेचना है तो ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट बिकता नहीं है, यू जस्ट हैव टू फाइंड व्हाट प्राइस आई वांट टू सेल एट एंड व्हाट इज द प्राइस मार्केट इज विलिंग टू गिव। वो मैच हो जाता है तो लिक्विडिटी रियल एस्टेट में बहुत है, अभी भी बहुत अच्छी लिक्विडिटी है एंड कैपिटल एप्रिसिएशन तो एक्सपोनेंशियल है, आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट इट। किसी ने भी अगर 15 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी और आज उसकी प्राइस देखेगा तो वो मिनिमम डबल तो होती है। दिस इज अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस सिटीज, कहीं पे भी आप प्रॉपर्टी अगर खरीदते हो तो आप देखोगे कम से कम 15 साल में प्रॉपर्टी का प्राइस डबल हो जाता है। विद दैट मैं एक और आपको आई वांट टू शो यू वन मोर कपल हु हैज इन्वेस्टेड इन विजय श्योर, जो करंट हमारा प्रोजेक्ट है विजय श्योर टाउन सेंटर, उसमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनका मैं आपको एक स्टोरी दिखाना चाहता हूँ। विलास जावडेकर बिल्डर्स आम्हाला आधीपासून माहिती आहे, पुण्यात वेल नोन आहे. फर्स्ट थिंग्स की इंदिरा नॅशनल स्कूल, वी नो दॅट द इंदिरा नॅशनल स्कूल, आणि इथला हा एरिया आम्हाला माहिती होता आणि आम्हाला काहीतरी असं एक छोटी इन्व्हेस्टमेंट करायची होती. 1 BHK असं आमचा तो बजेट होता, पण तुम्ही आम्हाला त्याच बजेटमध्ये एक चांगली कमर्शियल प्रॉपर्टी दिली, इवन त्याच्यापेक्षा थोडी कमी म्हणलं तरी चालेल. तर हा आम्हाला आवडला पहिल्यांदा. माझा एक मित्र आहे, त्यांनी कॅनडावरनं केलं होतं. माझा अजून एक मित्र आहे, त्यांनी इवन IT पार्क खराडीला असं हा एक ऑप्शन पाहिला होता. त्यामुळे वी हर्ड अबाउट दिस थिंग्स. आणि मला स्वतःला तर कोविडच्या ह्याच्यामुळे जे काही आत्ता प्रॉब्लेम्स IT मध्ये इथनं पुढं काही जे काही चेंजेस येणार आहेत, की आता वी आर बोथ आर वर्किंग फ्रॉम होम, आणि आमच्या ही ज्या ऑफिसला सांगितलं की आता तुम्ही मे बी इट्स फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स वी आर वर्किंग फ्रॉम होम. हे आम्ही आजूबाजूला बघतोय, स्वतः पाहतोय. त्यामुळं हा कन्सेप्ट यापुढे येण्याची जास्त शक्यता वाटते. इट्स अ कम्प्लिटली फायनान्शियल डिसिजन, इट नॉट इमोशनल. इथून पुढे IT पार्क इथून जवळ आहे, ह्या स्पॉटपासून स्कूल जवळ आहेत, तुमच्या मागं रेसिडेन्शियल येत आहे आणि हा हायवेपासून जवळ प्लॉट आहे, आणि इथनं पुढे ह्याच बाजूला अर्बनायझेशन वाढत चालणार आहे. त्यामुळं हा तर कमर्शियल आम्हाला फार छान प्रोजेक्ट वाटतं. कम्पेअर करत होतो म्हणजे आम्ही की गोल्ड घ्यायचं की ही प्रॉपर्टी आपल्याला बरी राहील. गोल्डमध्ये आम्हाला एवढी विजिबिलिटी येत नव्हती किंवा एवढा एक्सपिरियन्स नाही आहे, माहिती नाही आहे ॲक्च्युली. मेन ते थोडंसं वाटलं की थोडंसं आपल्याला याच्यात ते थोडंसं कमर्शियल असल्यामुळे यू विल गेट द मोर बेनिफिट मोर दॅन गोल्ड, असं आजचं आमचं प्रेडिक्शन आहे. उद्या मी हा कमर्शियल म्हणून पण यूज करू शकतो, मी ही स्पेस, किंवा मी रेसिडेन्शियल म्हणून पण यूज करू शकतो. इट्स बोथ बेनिफिट. सगळ्यांचा एक पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स तर आलेला आहे की कमर्शियल प्लस हे असल्यामुळे चांगलं वाटतं. शिवाय तुम्ही EMI आपण जे काही रिटर्न्स आहे तर ते बेनिफिट्स पण घेऊ शकतो, तो पण एक चांगला बेनिफिट आहे की आम्हाला दोघे आम्ही इन्कम टॅक्स ह्याच्यामध्ये येत असल्यामुळे तो आम्हाला बेनिफिट घेता येईल, आणि हा आम्ही नक्की रिकमेंडेड करू शकतो. So I think जो चीजें मैंने बताई थी वही सारी चीजें when it comes from one of our customers तो थोड़ा अच्छा लगता है. It gives little bit more confidence, क्योंकि you know it is always good कि जो मैं बता रहा हूँ वही चीज अगर मेरे customers बोलते हैं तो it gives little bit more assurity to the people who are attending this webinar right now. And in fact अभी मुझे किसी ने सवाल भी पूछा था Q&A में, मिस्टर अनुज सर ने एक सवाल पूछा था कि can this be used as an office space later. तो अनुज सर I hope मतलब you know you've already got your answer from one of our customers कि yes, this can be used as a commercial space or as a residential space because इसका sanction ही वैसे लिया गया है. I would request everyone कि जैसे अभी अनुज सर ने Q&A में एक question डाला है, so all of you must be having a tab at the bottom of your screen, Q&A का. You keep posting your questions on that. At the end of this webinar, we'll be addressing all the questions one by one. So आपको अगर throughout the presentation कोई भी question आ रहा है, you please keep posting it there. End of the webinar, I'll address all of this. Me and Siddesh together will address all of these questions. Just a recap, why you should be investing in commercial real estate specifically. One, क्योंकि आपको एक passive rental income आता है, which means कि आज अगर आपका कोई एक main business चल रहा है, you have some job, you have some business, something which you are already having, उसके side में आपको एक simultaneously income चालू रहेगा, which is the rental income. Secondly, because you can leverage debt. अगर आप लोन लेके कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसका फायदा होता है ना कि आपका लोन का जो कंपोनेंट है वो डे बाय डे कम होते जाता है, बट आपका प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होता है. इसके वजह से जब आप कोई भी एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है व्हेन यू इन्वेस्ट इट इन अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी यूजिंग लोन. Then third thing that I want to talk about is again tax advantage.
LTCG and as well as the interest waiver or the ATC, whichever you want to take advantage of. Capital appreciation है, twofold income है, and fixed deposits की बात करें comparatively, specifically again I'm coming to FDs because most of the people here talk to me कि यार ये सब तो ठीक है पर FD में रखना क्यों बुरा है. तो पिछले 9 साल का अगर आप FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे ना 9.25 से 5.4% एंड 5.4% का जो क्राइटेरिया है वो भी ऐसा है कि यू हैव टू बी एट ऑफ अ पर्टिकुलर एज, यू हैव टू इन्वेस्ट इट फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन लॉक इन के साथ, तो जाके आपको 5.4% मिलता है एज कम्पेयर टू मतलब 9.25 इन 2012. तो आप सोचिए आज से और आगे हम 8-10 साल आगे जाएंगे तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है FD का. दिस इज कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग, वेयर एज प्रॉपर्टी इज वन थिंग जिसका रेंटल आपको आज 6% के आसपास आज रेंट मिल रहा है एंड इट विल कीप इंक्रीजिंग. प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ते रहेगा. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज बेटर टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट अगेंस्ट FD, क्योंकि FD का सिर्फ एक एडवांटेज है लिक्विडिटी, जो आपको प्रॉपर्टी में भी मिल सकता है. ऐसा नहीं कि रियल एस्टेट बिकता नहीं है. रियल एस्टेट मार्केट स्पेशली कमर्शियल मार्केट में ऑलवेज इन डिमांड व्हेन यू इन्वेस्ट स्मार्टली. अगर आप कहीं पे भी रैंडम एक दुकान खरीद लोगे जिसका कीमत 1.5 करोड़ है, आगे जाके उसको 2 करोड़ में बेचने जाओगे तो वो मुश्किल है. But when you are buying something today at a very smart location with the potential to grow, then it is always, it is always liquidable. So I'll come to the project presentation now. This is just one video by Raj from the sales team who would explain it better than I can. So I'm just going to run his video to brief you about the project. Hi, are you still dependent on the single income or you putting all your money in the bank FD? Today I would like to introduce our new project which is Town Center and Grand Central in Wakad, which is super unity real estate and which is going to give you rental income lifetime. My name is Raj Kevlani. I am from Vilas Javadekar Developer. आज मैं आपको 2 नए वाकड़ के प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूँगा जो विलास जावड़ेकर डेवलपर ने इंट्रोड्यूस किए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए. पहले बात करते हैं लोकेशन की. वाकड़ लोकेशन जाना जाता है एजुकेशन हब की वजह से. पुणे के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं जैसे कि इंदिरा, बालाजी, JSPM, DY पाटिल एक्सेट्रा सारे वाकड़ में लोकेटेड हैं. एंड मुंबई पुणे हाईवे जो कि काफ़ी अच्छा कनेक्टिविटी देता है वाकड़ सबर्ब्स को और वो लोकेटेड है हमारे लोकेशन के जस्ट 100 मीटर के डिस्टेंस पे. कनेक्टिविटी वाइज देखेंगे आपको हाईवे से बानेर, बालेवाड़ी, पिंपरी चिंचवड़, हिंजेवाड़ी कहीं पे भी जाना है सिर्फ 5-7 मिनट में आप इजीली पहुंच सकते हैं बिकॉज टाउन सेंटर जो लोकेशन है वो हाईवे से काफ़ी नज़दीक में 100 मीटर के डिस्टेंस पे आता है. अभी मैं आपको 2 नए डेवलपमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि वाकड़ में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. फर्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अनदर इज इओन IT पार्क. ये 2 नए IT पार्क वाकड़ में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट टाउन सेंटर से काफ़ी नज़दीक में है जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है. ये 2 नए IT पार्क के आने से फ्यूचर में यहाँ पे 1 लाख प्लस एम्प्लॉयमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की हेल्प से ये लोकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होने वाला है. सो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट बिकॉज जब भी ये IT पार्क फंक्शनल होंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी की प्राइसेस अच्छे से अप्रिसिएशन हो जाएगी. दूसरा नया डेवलपमेंट है वाकड़ का फीनिक्स मॉल. फीनिक्स मॉल सयाजी होटल के काफ़ी नज़दीक में आता है एंड वहाँ पे भी हमारा एक दूसरा प्रोजेक्ट है कॉल्ड ग्रैंड सेंट्रल. ये 3 नए डेवलपमेंट्स मुंबई पुणे हाईवे, एजुकेशन हब, लॉट मेनी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंक ATM, सुपरमार्केट्स, मॉल्स आर इन वाकड़. टाउन सेंटर लोकेशन इंदिरा स्कूल के पास में आता है जो कि वाकड़ के सिटी सेंटर में है. टाउन सेंटर इज अ 13 स्टोरी टॉल बिल्डिंग. बेसमेंट में पार्किंग की स्पेसेस है. ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे हमने रिटेल इंट्रोड्यूस किया है. रिटेल में कैफे, ग्रोसरी, मेडिकल स्टोर, सुपरमार्केट, सैलून, शॉपी एंड हाई स्ट्रीट रिटेल आपको मिल जाता है. एंड सेकंड से 13 फ्लोर पे हमने को लिविंग यूनिट्स रखे हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. को लिविंग यूनिट्स, एक यूनिट का आपको कार्पेट एरिया 185 स्क्वायर फीट एंड सेलेबल एरिया 275 स्क्वायर फीट मिल जाता है. हर फ्लोर पे आपको 4 एलिवेटर मिल जाते हैं और आपको 34 टोटल यूनिट्स हैं जिसमें आपका ओवरऑल जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा लगभग 24 लाख से 27 लाख की रेंज में आएगा और आपको 11,925 रुपये का महीने का रेंट भी मिलेगा और रेंट एवरी 3 ईयर्स 15% से आपका ग्रो होता जाएगा. इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा छोटा इन्वेस्टमेंट है. सिटी सेंटर का है, मेन रोड टच का है and this entire building is operated by Stanza Living operator. Stanza Living is an operator wherein they provide service apartment and accommodation service to all.
यहाँ पे इनको बैचलर्स के सर्विस अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स मिल जाती है। आईटी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आके रह सकते हैं। इवन ट्रैवलर्स, मुंबई पुणे हाईवे नज़दीक में है तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलर्स इनको इजीली मिल जाते हैं। एंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड नियॉन आईटी पार्क आने से यहाँ पे उनको रूम्स इजीली मिल जाते हैं जो भी वहाँ पे जॉब करता है। तो सो इन्वेस्टर के लिए सेफ है, 10 ईयर्स का एग्रीमेंट है जिसके अंदर हर 3 साल में आपका रेंट भी बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट एकदम पॉकेट फ्रेंडली है जो कि 24 से 27 लाख में आपको मिल जाता है। जो 24 लाख से 27 लाख का प्राइस है ये इजीली आपको लोन पे भी मिल जाता है। सो ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है एसबीआई बैंक से जिसमें आप 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन ले सकते हैं। ये प्रोजेक्ट पूरा रेसिडेंशियल सैंक्शन है तो आपको इजीली होम लोन मिल जाता है। एंड बेस्ट पार्ट इसमें आपको नो प्रीएमआई टिल पोजेशन का ऑफर मिल जाता है अगर आप जल्दी से जल्दी बुकिंग करते हैं तो। इसमें हमने 3 पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किए हैं। पहला पेमेंट प्लान 90% डाउन पेमेंट का है जिसमें 90% एट द टाइम ऑफ बुकिंग देना होता है एंड 10% एट द टाइम ऑफ पोजेशन देना होता है। इसमें द बेस्ट पार्ट इज आपका रेंट इमीडिएटली चालू हो जाता है। सेकंड सेल्फ फाइनेंस पेमेंट प्लान है जिसमें 5 लाख रुपीज़ एट द टाइम ऑफ बुकिंग देने होते हैं एंड एवरी मंथ आपका 50,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है टिल द टाइम ऑफ पोजेशन। इसमें रेंट आपका पोजेशन के बाद चालू होता है। थर्ड पेमेंट प्लान नो प्रीएमआई टिल पोजेशन का है जिसमें आपको 2 लाख प्लस स्टैम्प ड्यूटी टोटल 4 लाख रुपीज़ बुकिंग के टाइम पे देने होते हैं एंड टिल पोजेशन देर इज़ नो प्रीएमआई टिल पोजेशन। इसमें आपको होम लोन्स भी इजीली मिल जाएंगे और जो भी आपकी प्रीएमआईज आती है वो डेवलपर आपको हर महीने रिफंड कर देगा। देर इज़ नो ईएमआई टिल पोजेशन। इसमें जो रेंट रहेगा आपका पोजेशन के बाद चालू होगा। इफ़ यू लुक एट द लोकेशन सिटी सेंटर की तरफ होने से प्रोजेक्ट का अप्रिसिएशन लास्ट 5 सालों में काफ़ी अच्छा हुआ है। लोकेशन का अप्रिसिएशन, डेवलपमेंट, पूरा रेसिडेंशियल हब बन गया है। यहाँ पे अभी कोई भी खाली लैंड अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी इन टाउन सेंटर एंड अर्न लाइफ टाइम रेंटल इनकम। सो इस प्रोजेक्ट का सीक्रेट एलिमेंट है देयर इज़ नो मेंटेनेंस, there is no light bill, there is no extra expense of furniture, there is no tenant headache and there is no pre-EMI till possession। सारा का सारा हेडेक जो है स्टेंजा ऑपरेटर मैनेज करेगा। आपको सिर्फ आपका मनी इन्वेस्ट करना है रियल स्टेट में एंड यू आर हैप्पी टू अर्न लाइफ टाइम रेंटल इनकम। अगर आप रिटर्न देखेंगे इसमें एज कम्पेयर टू द बैंक एफडी 5.5 से 6.5% का आपको रेंटल रिटर्न मिल जाता है एंड आपकी एसेट देखते हैं ईयर ऑन ईयर एसेट भी 10 से 15% से अप्रिशिएट हो जाती है जो आज के टाइम से सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है। If you really want to make your money grow while you sleep, then invest in town center, super utility real estate and enjoy lifetime rental income. Similarly, हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है फिनिक्स मॉल के पास जिसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल। सो ग्रैंड सेंट्रल अगेन 20 फ्लोर का बिल्डिंग है जिसमें 10 फ्लोर तक नीचे में हमने रिटेल, पार्किंग, महाड़ा, कमर्शियल बनाया है एंड 10 के ऊपर 20th फ्लोर तक हमने को लिविंग यूनिट्स बनाया है। सो उसका प्राइस आपको जाएगा 22 लाख से 25 लाख एंड वहाँ पे रेंटल इनकम आपको मिलेगी 11,180। अगेन रेंटल इनकम आपकी हर 3 साल में रेंट इंक्रीज होता जाएगा 15% से। सो दिस ऑल्सो इज मेंटेन बाय स्टेंजा एंड यहाँ पे भी आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल जाती है रेंटल में जो आपको टाउन सेंटर में मिलती है। सो रिमेंबर इफ यू आर सीरियसली लुकिंग फॉर अ गुड डील एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट है। 22 से 27 लाख के अंदर आपको दोनों ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल जाता है और लाइफ टाइम आपको रेंटल इनकम मिल जाती है। ये एक फैमिली का ऐसा सदस्य है जो कि आपको लाइफ टाइम कमा के देगा because this is permanent, this is real estate, this is not like a bank FD or stock market or gold which is volatile. This is real estate. Real estate is real, permanent and this will help you to make your money grow over the year and year. Thank you so much. My name is Raj. If you have any sales related queries, feel free to call our sales team and we will help you to do your booking. Thank you so much. आई थिंक राज ने वैसे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। आई थिंक इन दिस स्मॉल वीडियो ही हैज कवर्ड ऑल द टॉपिक्स अबाउट द प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, इसीलिए मैंने अलग से प्रेजेंटेशन नहीं रखा। आई थॉट ये वीडियो वैसे सब कुछ कवर कर देगा। स्टिल इफ देयर इज समथिंग हम एंड में Q&A रखेंगे उसके बारे में। बिफोर आई मूव अहेड आई वांटेड टू टॉक अबाउट स्टैंजा, क्योंकि काफी लोगों को ये सवाल है कि यार ये सब तो ठीक है कि हमारा यूनिट है, रेंट आएगा, ये सब ठीक है, लेकिन स्टैंजा ये कंपनी कौन है, ये क्या करती है।
जस्ट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस स्टैंजा। एक को लिविंग कंपनी है। को लिविंग का मतलब है बेसिकली इट इज अ पीजी। अगर आज आप मॉडर्न पीजी की बात करेंगे तो दैट इज अ पेइंग गेस्ट के जैसे हॉस्टल्स होते थे पहले प्राइवेट, वैसे स्टैंजा इज इनटू द को लिविंग इंडस्ट्री हु हैज immense presence across the country। मतलब more than 50,000 बेड्स उनके ऑलरेडी है। 70 मिलियन का फंडिंग, मतलब लगभग आई थिंक if I'm not wrong that comes to around 525 crore का फंडिंग उनको अभी तक मिल चुका है, and they are still raising more funds to go in the further rounds। 250 से 300 250 से 500 के बीच में उनके टोटल एम्प्लॉइज है। हेडक्वार्टर उनका न्यू दिल्ली बेस्ड है। एंड द कंपनीज फुल टाइम बिजनेस इज टू जस्ट फाइंड बैचलर्स या स्टूडेंट्स हु वांट अ को लिविंग या हॉस्टल स्पेस। तो आपका जो मेन कंसर्न होता है कि यार मेरा यूनिट अगर नहीं गया तो क्या होगा, तो स्टैंजा इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जाएगा। नहीं भी जाएगा तो आपको तो स्टैंजा से रेंट आते रहना है। दैट इज नॉट योर कंसर्न। उनको उनका काम है आपके लिए टेनेंट, मतलब वो यूनिट्स के लिए टेनेंट ढूंढना, जो मार्केट रिसर्च करके डिमांड सप्लाई एनालिसिस करके टाइप्स करके कंपनीज एंड हॉस्टल्स कॉलेजेस के साथ में टाइप कर करके दे हैव रिक्वायरमेंट अक्रॉस द सिटी। ये लोकेशन का जैसे इन द वीडियो यू मस्ट हैव सीन, राज ने बताया कि ये लोकेशन का एडवांटेज ऐसा है कि आसपास में देयर आर मेनी कॉलेजेस, देयर आर मेनी आईटी कंपनीज दैट आर कमिंग अप। हिंजेवाड़ी से प्रॉक्सिमिटी तो है ही, प्लस वाकड इटसेल्फ इज कमिंग अप विद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एज वेल एज इयन आईटी वेस्ट, इयन आईटी पार्क वेस्ट। ये दो बड़े ऐसे आईटी पार्क्स है जिनमें लगभग 1.5 लाख लोग एम्प्लॉयड रहने वाले। उससे आपका प्रोजेक्ट, अभी ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज हार्डली 300 से 400 मीटर्स के डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे। So definitely there is going to be a demand, there is going to be a requirement for people to stay। अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आई विल आल्सो पॉइंट आउट भूमकर चौक पर रिसेंटली डिकैथलॉन करके एक कंपनी ने, आई मीन डिकैथलॉन हैज कम अप इन भूमकर, नियर भूमकर चौक, विद द सेम व्यू कि आसपास में बैचलर्स एंड यंग लोगों का क्राउड इतना है कि दे रिक्वायर स्पोर्ट्स एंड ऑल दिस फैसिलिटीज, इसीलिए डिकैथलॉन चोज दैट पर्टिकुलर लोकेशन। फिनिक्स मॉल भी यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि द क्राउड दैट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मॉल्स इज ऑन अ हायर नंबर इन दिस लोकेशन। सो when you invest in the property which is coming up in a proximity to the metro, which has proximity to major IT parks and schools, colleges, mall like Phoenix Mall, so definitely the developer, the company who is leasing it has thought something in the years ahead। तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा प्रॉपर्टी आगे कंटिन्यूएशन में रहेगा या नहीं रेंटल। अगर मैं अभी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की बात करूं तो देन अगेन लेट्स कम टू अ वेरी सिंपल कंपैरिजन। लोग रियल एस्टेट के अंदर ही अगर बात करेंगे तो कहते हैं कि यार व्हाई शुड आई बाय अ स्टूडियो अपार्टमेंट, उससे अच्छा मैं एक 1 BHK या 2 BHK क्यों ना ले लूं या एक शॉप क्यों ना ले लूं। तो लेट्स कंपेयर वन बाय वन कि आज वाकड़ में इस लोकेशन में अगर हम एक 1 BHK भी लेने जाते हैं तो आपको उसका प्राइस आएगा कम से कम 45 लाख रुपीज। रेंट आता है 13,000, ये भी आपको उसको पूरा फर्निश करना पड़ेगा तब जाके 13,000 का रेंट आएगा। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि तुरंत टेनेंट मिलेगा इसकी कोई गारंटी है नहीं फिलहाल मार्केट में। मोस्ट ऑफ द पीपल are finding tenants। some of the people who are attending this webinar might already have some property purchase जहाँ पे उनको ये difficulty face कर रहे हैं कि tenants नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको 10 साल के लिए tenant ढूंढना नहीं है, that is one of the biggest advantage। अगर आप 1 BHK खरीदते भी हो वाकड़ में कहीं पे 45 लाख देखिए, उसमें मतलब उसमें आप फर्नीचर कॉस्ट और खर्चा करके उस पर आप अलग से एक ब्रोकर अपॉइंट करोगे आपको टेनेंट ढूंढने के लिए, उसमें हर महीना मेंटेनेंस भरोगे 2,500 से 3,000, तो एक्चुअल आपके हाथ में आएगा 10 महीने का रेंट जो कि होगा 10,000 रुपए के आसपास आफ्टर इन्वेस्टिंग 45 लाख। ये एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट का इन्वेस्टमेंट का लॉजिक है। अगर मैं शॉप की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉप आपको मिलेगा नहीं कहीं पे भी वाकड़ के आसपास 1 करोड़ के नीचे शॉप नहीं मिलेगा। मिल भी गया तो कम से कम 1.25 करोड़ का शॉप है जिसका रेंट 25 से 30,000 से ज्यादा नहीं आता है। अगर आपको झूठ लग रहा है तो आई कैन शो यू शॉप्स। मेरे पास ऐसे ऑप्शंस है जो ओनर्स है जो परेशान हो गए क्योंकि अभी खाली पड़ा है शॉप, कोई टेनेंट नहीं मिल रहा है पिछले 1 साल से, और एक कम से कम 1.25 करोड़ का क्योंकि उन्होंने खरीदा ही था 90 लाख, तो वो बेचना नहीं चाहते उससे सस्ते। दैट इज द सिचुएशन ऑफ शॉप्स राइट नाउ, क्योंकि कोविड के बाद में शॉप से ऑपरेट करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। आप कई लोग ये भी बोलते हैं कि चलो टेनेंट नहीं मिला तो मैं खुद कुछ डाल दूंगा। अब आपका मेन बिजनेस क्या है? यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय या यू आर सम काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल। शॉप इज रिक्वायर्ड। आप ज्यादा से ज्यादा सोचते हो कि यार वहां पे कुछ नहीं तो मैं कैफे डाल दूंगा। कितने कैफे चलेंगे यार पुणे में? वाकड़ में अभी कम से कम 100 कैफे होंगे। शॉप लेना इज नॉट गोइंग टू बी एन एडवाइजेबल इन्वेस्टमेंट इफ यू डू नॉट हैव अ क्लियर कट पर्पस आउट ऑफ इट, अनलेस आप खुद कोई हार्डवेयर के दुकान चलाने वाले लोग आदमी हो या कोई ऐसा दुकान आपका खुद का ऑलरेडी है एंड यू आर इन द बिजनेस ऑफ योर मेन बिजनेस इज रनिंग शॉप्स। शॉप इन्वेस्टमेंट इज नो लॉन्गर अ वेरी लुक्रेटिव ऑप्शन। आप लेके भी सोचते हो कि आगे मैं खुद चला लूंगा तो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट विल बी हायर देन द इनकम दैट यू कैन अर्न आउट ऑफ इट,
ऐसी तो सिचुएशन हो गई है अभी। कमिंग टू श्योर यूनिट्स, तो आज यहाँ पे जो अपने पास ऑप्शंस है, अगर मैं देखूँ तो कम से कम मेरा जो ऑप्शन है 21.9 22 लाख, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, दिस इज एक्चुअली सपोज टू बी 44 लाख। अगर मैं 2 यूनिट्स लेता हूँ तो 43.9 लाख में मुझे 2 यूनिट मिलते हैं, जिनका रेंट मुझे कम से कम 22,500 से 24,000 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन विच यूनिट आई एम बाइंग। उसमें आपको मेंटेनेंस कुछ नहीं पे करना है, कुछ ब्रोकरेज नहीं पे करना है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द नेक्स्ट 10 इयर्स। कोई पेपर वर्क नहीं कि आके मुझे टेनेंट के साथ में एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ, या कोई हर साल नया कुछ एग्रीमेंट लीज बना रहे हैं। 1000 different headaches and hassles that one has when you're investing in a property for rental purpose. यहाँ पे आपके अगले 10 साल के लिए पोजीशन के बाद में कोई हैसल्स नहीं। इनफैक्ट इफ यू गो विद द 90% प्लान, अगर आज आपने 20 लाख रुपए एफडी में रखा है, वो निकाल के आप अगर आज श्योर यूनिट में दे देते हो 20 लाख रुपीज, तो आपका रेंटल तो इमीडिएटली स्टार्ट होता है। 10 साल नहीं 13 साल के लिए रेंट आएगा। एंड आई विल शो यू इन अ कैलकुलेशन जहाँ पे वो रेंट जो है आपके प्रॉपर्टी प्राइस के बराबर हो जाता है। टाउन सेंटर और ग्रैंड सेंट्रल जो हमारे 2 प्रोजेक्ट है उनमें कंपेयर करते हैं तो देखेंगे कि द रेंट टू प्राइस रेशियो इज मोर और लेस द सेम, 5.5 से 6.2% के बीच में वेरी करता है। आपका रेंट, अगर प्राइस कम हो रहा है तो रेंट भी उसमें कम है, प्राइस थोड़ा ज्यादा है तो रेंट भी ज्यादा है, बट इफेक्टिवली 3 टाइम्स ROI है। 3 टाइम्स ROI का मतलब, अगर मैं शॉप और फ्लैट को कंसिडर करूँ तो रेंट टू प्राइस जो मेरा 2 से 3% आता है, वो सीधा यहाँ पे 5.5 से 6% रेंटल का इनकम है। प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन इज अ डिफरेंट टॉपिक अगेन। जब आप 20-25 लाख की प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसे 35-40 लाख में बेचना काफी आसान है। जब आप ऑलरेडी 50 लाख में कोई चीज खरीदते हो या 1 करोड़ में खरीदते हो तो उसे बेचने के लिए खरीदने वाले लोग भी और कम है, उसे बेचना उतना ज्यादा मुश्किल है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट की टिकट साइज इज स्मॉल, सो लिक्विडिटी इज ऑल्सो ईजी। आगे चल के उसे बेचने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। I'll just like to quickly do a investment analysis of this thing. एक Excel presentation है. I hope everyone can see the screen. If not, just drop me in the chat box. I'll see what is the issue. अगर हम टाउन सेंटर की बात करें एंड if we are investing 10% today, तो आपका टोटल पैकेज आता है लगभग 25.5। डाउन पेमेंट आपका रहेगा 4.5 लाख। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% जो भी है, एंड मैं देखता हूँ मैक्सिमम टेन्योर 30 साल का होता है लोन के लिए, अगर मैं वो लेता हूँ फॉर अ पीरियड ऑफ 9 इयर्स, अगर हम पूरे पोजीशन की, अगर अगले पोजीशन के बाद 9 साल तक हम ये प्रॉपर्टी रखते हैं, तो जो आपका रिटर्न है वो मैंने यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट किया है। अभी इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जस्ट अ सेकंड, आई एम गेटिंग सम okay, I again request please do not post something on chat but rather post it on Q&A, क्योंकि वो थोड़ा मुझे भी डिस्ट्रैक्टिंग है। Q&A में आप अगर आपके क्वेश्चंस डालोगे तो मैं ज्यादा आसानी से आंसर कर पाऊंगा एंड में। कमिंग टू द एनालिसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, आपका टोटल रेंट जो है 9 साल में इट कम्स टू अबाउट 15 लाख रुपीज। टाउन सेंटर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका 9 साल का रेंट 15 लाख है, इसमें और 1 साल बचता है, टोटल 10 साल आपके पास है। मैं 9 साल का इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि assuming 9 साल के बाद में the agreement will be renewed and the terms will be different as in the rental will be higher। 9 साल तक का हम अगर देखते हैं सिर्फ, तो भी आपको कम से कम 15 लाख का रेंट प्रॉपर्टी से मिल रहा है। उसका प्राइस 9 साल बाद में कम से कम 44 लाख, आपका प्राइस 43 लाख होता है एट अ रेट ऑफ 5% अप्रिसिएशन। ये 5% कहाँ से आया? एनुअली अगर हमारी 3 साल में 15% से रेंट बढ़ रहा है, तो उसी लॉजिक से हर मतलब प्रैक्टिकली देखेंगे तो हर साल 5% से रेंट बढ़ रहा है, तो उसी रेशियो में आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है। ये लॉजिक से हमने 5% लिया। अगर मैं वैसे देखूं तो आपका जो रिटर्न है दैट कम्स टू अबाउट 15%। अगर मतलब मैं इनकम की बात करूं, नेट इनकम जो आज आप 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी टोटल वैल्यू उस समय पे होती है 25 लाख रुपए बेचने के बाद। इवन इफ यू क्लियर द लोन, जो भी आउटस्टैंडिंग लोन है वो सब भी क्लियर करते हैं, तो भी आपके हाथ में कम से कम 25 लाख बचते हैं, विच मीन्स आपका जो इन्वेस्टमेंट है 4.5 लाख का, वो होता है टोटल 5.5 टाइम्स उसका ग्रोथ होता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार मुझे 30 ईयर्स का लोन नहीं लेना है, मैं इसको 20 साल भी कर देता हूँ, तो भी रिटर्न्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपका बस फर्क कहाँ पे पड़ेगा, तो आपका जो इफेक्टिव EMI है, मतलब आपका जो रेंट आने वाला है, उसके अलावा ऊपर आपको महीने का ऑन एन एवरेज 2,500 रुपए पे करना है फॉर 9 ईयर्स। मतलब इट इज लाइक एन SIP, जहाँ पे आपने 4.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया, अगले 9 साल के लिए 2,500 की SIP किया, तो भी आपकी जो प्रॉपर्टी की प्राइस है वो उस समय में बेचने के बाद में, एंड वी आर कंसिडरिंग अ वेरी नॉमिनल 5% अप्रिसिएशन। इसमें भी अगर मैं कहूँ आपको, चलो कि 5 नहीं 4% ही पकड़ते हैं कि और कम होता है, इतना अच्छे से अप्रिशिएट नहीं होता है, तो भी कम से कम वो प्रॉपर्टी की वैल्यू रहेगी 40 लाख।
आज से 9 साल पोजीशन के बाद के और पहले 3, ऐसे टोटल 12 साल बाद अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो भी द प्रॉपर्टी कम्स टू अबाउट 40 lakhs। ये तो मैं पक्के से बोल सकता हूँ कि कोई भी बेच, आज भी इस लोकेशन में भूमकर चौक में मेरा खुद का ऑफिस है, आज भी मेरे ऑफिस का अगर कोई डील होता है हमारी बिल्डिंग में तो इट डजंट हैपन बिलो 40 lakhs। वी आर सेइंग 12 years from now in a very well maintained society in a premium location which is close to the World Trade Center and IT parks which will be fully operational by that time। Phoenix Mall operational होगा, आपका मेट्रो फंक्शनल होगा। ये सारी चीजें होने के बावजूद अगर प्रॉपर्टी का प्राइस इतना नहीं होता है तो देन यू आर आई मीन आई कैन अश्योर यू दैट ये लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है कि आप 40 लाख रुपए से बेचो, आप उससे ज्यादा ही प्राइस में बेचोगे। दिस इज द लोएस्ट आई एम कंसिडरिंग कि 40 लाख में अगर आप ये चीज बेचोगे तो भी आपका रिटर्न विल बी अराउंड 14%। नाउ व्हेन आई से ऑफ द 90% डाउन पेमेंट प्लान जिसमें आपको इमीडिएट रेंट शुरू होता है, आपके एग्रीमेंट के बाद तुरंत रेंट जब शुरू होगा तो ऑब्वियसली उस केस में आपको लोन का कोई कंसर्न नहीं है। आप 9 साल तक रखते हो और प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूँ अभी 36 lakhs में भी बेचते हो तो भी आपका रिटर्न्स आर अबाउट 8.7%। अब ये कम हुआ, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि आपका रिस्क इसमें जीरो है। आफ्टर 9 years या आफ्टर 10 years देयर इज स्टिल पोटेंशियल फॉर यू टू कीप अर्निंग रेंट आउट ऑफ इट विदाउट एनी लॉस टू यू। आपका अगर स्टैंडा चले भी जाता है तो भी आपको कोई जेब से लॉस नहीं है, आपका जो पैसा था वो आपका यहाँ पे कवर हो गया। इफ यू सी आपका टोटल प्राइस इज 23.4 और 9 साल में ही 23 लाख, मतलब अगले साल 10 साल का अगर हम पूरा रेंट देखेंगे तो इट विल बी मोर देन 25 lakhs। तो प्रॉपर्टी जितने दिन के लिए रेंट आउट है उतने में तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, उसके बाद में आगे जो भी रिटर्न है दैट आर ऑल योर प्रॉफिट। दैट इज द रीजन ये जो 8.7 आपको यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है, इट इज प्योरली कंपेरिजन टू एफडी। एफडी अगर आप आज 23 लाख रुपए एफडी में रखोगे तो आपको उसका 4.5-5% मिल रहा है, उसके बदले यहाँ पे आपको 8.5% अश्योर्ड मिल रहा है। दिस इज लाइक 100% यू आर गेटिंग दिस विदाउट इवन सेलिंग द प्रॉपर्टी। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। आप इसको जिस प्राइस में चाहो बेचो आगे, दैट इज योर कंट्रोल दैट यू हैव इन योर हैंड। Coming back to the presentation, I would just like to summarize this before we move it to the Q&As. Why you should invest in Sure? So first thing, assured rental income। आपको कोई वैकेंसी लॉस नहीं है, कोई अगले 10 साल तक कोई चिंता नहीं है पोजीशन के बाद में कि आपका यूनिट खाली है या नहीं है, उसके बदले में आपको क्या होगा। यू हैव अ प्रॉपर एग्रीमेंट इन प्लेस टू गेट अ रेंटल फॉर द नेक्स्ट 10 years। आपका वन टाइम एग्रीमेंट है, यानी कोई हर 11 महीने में एग्रीमेंट रिन्यू करने के लिए यहाँ प्रॉपर्टी पे आओ, कोई एग्रीमेंट करो, उसके लिए समय दो, ये सब कुछ करना नहीं है। ब्रोकरेज कोई पे करना नहीं है, आपको कोई टेनेंट ढूंढने के लिए हर साल नया ब्रोकरेज पे करो 1 महीने का, ये प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट छोटे साइज का है तो लिक्विडिटी भी आसान है। फर्नीचर कॉस्ट आपको कुछ नहीं, क्योंकि आपका जो सेटअप जो है फर्नीचर का वो खुद स्टैंडा करने वाला है, तो यू डोंट हैव टू बेयर एनी फर्दर कॉस्ट ऑन इट। मेंटेनेंस फ्री है क्योंकि 10 साल तक आपका जीरो मेंटेनेंस रहेगा, जो भी रेंट आने वाला है दैट इज 100% योर इनकम। फिजिकल एसेट है विच मीन्स कि आपको इसमें एक सिक्योरिटी है, आपका सेंस ऑफ ओनरशिप जो होता है, जो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि यार ये मेरा प्रॉपर्टी, आप यू कैन पॉइंट आउट। जब हम शेयर या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम ओनरशिप का एस्पेक्ट कभी उसमें एंजॉय नहीं कर पाते। यहाँ पे एक फिजिकल एसेट है, सिक्योर्ड है, एंड इट्स अ हाई आरओआई इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म एसेट की बात करेंगे तो आई हैव ऑलरेडी शोन टू यू, यू कैन अर्न एटलीस्ट अप टू 5 to 5.5 टाइम्स आपका पोटेंशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो होता है। मतलब आज का 4.5 से 5 लाख इन्वेस्टेड अगर आपका 25 लाख तक हो सकता है, विच इज ऑन अ वेरी मिनिमम साइड आई एम सेइंग, क्योंकि हमने अजम्पशन ही इतने कम किए कि आप 40 लाख में से बेच दोगे कम वर्स्ट केस सिनेरियो। नो वन वुड डू दैट बिकॉज उस समय पे प्रॉपर्टी और अप्रिशिएट होने वाली है। आज इस लोकेशन में 40 लाख का प्राइस है और फॉर अ कमर्शियल प्रीमाइस, उस समय में इट विल बी मच हायर, आई कैन अश्योर यू दैट। we'll just run through some typical asked questions, FAQs. Rental income कब start होगा? So most people ask this question. To answer that, अगर आप 90% वाले प्लान से जाते हो तो immediately after agreement, अगर आप 10% वाले प्लान से जा रहे हो तो आपका after possession. If you are going with the SIP plan that is 5 lakhs today and then 50,000 every month, तो भी आपका after possession आपका rental चालू होगा। How many projects have been done like this? So this is the 4th launch. टाउन सेंटर की बात करूँ तो ये 4था प्रोजेक्ट है। हैप्पीनेस्ट स्ट्रीट, वन एवेन्यू, ग्रैंड सेंट्रल, ये 3 प्रोजेक्ट पहले से लॉन्च करके 1000 से ज्यादा यूनिट बेच चुके हैं। इनफैक्ट टाउन सेंटर में भी अभी काफी 50% प्लस इन्वेंट्री इज सोल्ड राइट नाउ। कैन आई सेल द यूनिट बिफोर 10 years? तो कई लोगों को रहता है कि यार ठीक है मैं तो खरीद तो लिया, लेकिन अगर मुझे इन बिटवीन बेचना है तो ऑफ कोर्स यू कैन सेल इट एनी टाइम। दिस इज योर प्रॉपर्टी, आपके नाम पे ट्रांसफर होके यू आर द राइटफुल ओनर ऑफ इट। आप कभी भी इसे बेच सकते हो। ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड एन इन्वेस्टर जिसको आपकी जगह पे उनको रेंट ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। दैट इज द ओनली चेंज दैट विल हैपन। कैन आई रेंट आउट द प्रॉपर्टी टू समवन एल्स?
तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने ये यूनिट बनाया ही, डिजाइन इस तरह से किया था कि आपको हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट रहा हो। अगर आपको किसी और को इन्वेस्ट मतलब आपको टेनेंट चूज करना ही है, तो देन यू कैन फाइंड एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर आपको मजा आ रहा है कि मुझे खुद ही टेनेंट ढूंढना है, मुझे खुद वो सब काम करवाना है, मुझे फर्नीचर करवाना है, हर साल एग्रीमेंट रिन्यू करना है, ये सब मुझे खुद करना है, तो देर आर मेनी अदर ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। दिस इज प्योरली एन इन्वेस्टमेंट फॉर दोस्त जिनको बिल्कुल दिमाग में कुछ टेंशन लेना नहीं है। जैसे मेरा पोजीशन हुआ, मेरा रेंट शुरू, खत्म, आई डोंट वांट टू लुक एट इट फॉर द नेक्स्ट 10 years. What if the unit I purchase is not rented? So इस केस में भी आपको फुल रेंट मिल रहा है। दैट इज द ब्यूटी कि आपने कोई प्रॉपर्टी, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होगा जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी दिया हुआ है, वहाँ पे टेनेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है, वो यूज नहीं कर रहा है, फिर भी आपको उसका रेंट मिल रहा है। यहाँ पे वो आपको मिलेगा फॉर 10 years, यू आर अश्योर्ड फॉर दैट रेंट। What is the booking procedure? It's a very straightforward online procedure. For that, I want Siddesh to answer this, because he would be the right person to give you the complete idea. Online procedure कैसा है अपना booking का? Siddesh, can you just explain the booking procedure once? Yeah, am I audible? Yeah, you're on. Cool. Okay, thank you, Karan, for this wonderful presentation. I'm sure that the listeners and the viewers who have been through the presentation have been clear about what the concept is all about. And I'm sure that somebody who gives a detailed presentation like this, it's very easy for the investor to know about the product. Thank you so much for this. Coming back to the online procedure, yes, of course, it's we have kept it very hassle-free for our investors. So you can connect with us on this. We have the floor plans, we have the unit plans which can be explained to you. The inventory will be shared with you as whatever units would be available with us, and the amount transfer for this particular unit, whether it is the booking amount, the stamp duty amount, or say the consideration amount, will be taken online. We have the account numbers with us, which will be shared with you at the time of booking, and you can directly get the IMPS done. So we have kept it very easy for our customers to get the booking procedure completed. Also, the booking forms have been ready with us in a PDF format, where you can get them printed, and you can fill it up and share it with us. Your booking will be confirmed online. So it's completely hassle-free procedure for the clients who would want to finalize it. Also, I would just like to add one more thing कि जो no pre-EMI वाला offer है, Karan just mentioned we have limited number of units left for Yeah. Town Center and Grand Central. We would request our investors to quickly get on your decisions. And also, if you have any of the queries, you can of course ask me or Karan. We can get it rectified, and then we can finalize on a very good unit that you would want to purchase. So I see some people have raised hands. I request you, sir, please. I'm coming to the Q&As. So if you have any questions, post it there. I would answer the I'm coming to the Q&A now, so I'll start answering those questions. And thanks, Siddesh, for explaining the booking procedure. I would just like to add on to what you already mentioned. The no pre-EMI offer is a very limited time offer. एक तो इन्वेंट्री कम है, उसमें अगर आपको नो pre-EMI ऑफर लेना है, तो देन यू हैव टू बी रियली फास्ट विद द डिसीजन मेकिंग. ऑनलाइन बुकिंग है, काफी ट्रांसपेरेंट है. द यूनिट इटसेल्फ इज इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड यूनिट. आपको डेवलपर का जो लोकेशन है उसका वी कैन गिव यू ऑल द एग्जैक्ट लोकेशंस एंड कोऑर्डिनेट्स. वी कैन शो यू द एरियल व्यूज ऑफ द लोकेशन. You just have to go ahead, block a unit and be completely relaxed. पूरा इन्वेस्टमेंट ही ऐसा है, इस हिसाब से डिजाइन किया है कि यार ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े. With that in thought, I'll just start with the Q&A. Meanwhile, if anyone wants to connect directly, I am sharing the numbers on the screen, and I would also request everyone कि once you exit from the webinar, there is going to be a post-webinar survey. तो please आपको सर्वे भर दीजिएगा. वैसे तो आप Q&A के लिए रुकिए, because I want to address all the questions, but I'm just telling this because some people might exit in between the Q&A. तो आप जब भी आप close करोगे ये webinar, you will come across a post-webinar survey. So please fill that. That will help us in improving ourselves as well as understanding what we are going to come up in future. So Q&A से start करते हैं. सबसे पहला सवाल मिस्टर अनुज सर का था कि what can this space be used as an office later? So Anuj sir, definitely we can use this space as an office space later. First of all, तो जब तक स्टैंजा है तब तक आपको इसको यूज करने का कोई मतलब चिंता ही नहीं है, क्योंकि स्टैंजा से आपको रेंट आते रहेगा.
आपको इसको एज एन ऑफिस यूज करने की नौबत तब आएगी जब स्टैंजा छोड़ के जाता है, which to be honest is not going to happen with anytime soon. In fact, I don't think कि 10 साल के बाद में भी वो जाएंगे. Looking at the way we are moving ahead in time, co-living is becoming one of the major industries where some of the big players in globally are coming in. So I assure you. Just a second, Satish, I'll just mute you. Your voice is I'm getting some voice. Okay. Vishal sir has asked whether this is sanctioned as residential or commercial. So Vishal sir, this is sanctioned as R1, which is a mix of residential and commercial. So you can do any any professional business that can be conducted in this space you can legally conduct that business. आपका सैंक्शन रेसिडेंशियल की वजह से क्या फायदा है? R1 का फायदा ये कि आपको इस पे होम लोन मिलेगा, लेकिन इन फ्यूचर इट कैन बी यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स, सीएस, लॉयर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, ट्रैवल एजेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, any kind of professional person can use this place as an office space. एक और फायदा इसका ये है कि each unit comes with an attached washroom. आज इस एरिया में ऐसे कोई ऑफिस नहीं है इस साइज का, मतलब 200 स्क्वायर फीट के साइज का, जिसके साथ एक अटैच वॉशरूम आता है. आप I own an office, मतलब I operate a business, I run an office and I know the importance of that thing, क्योंकि मुझे जब ऑफिस में एक अटैच वॉशरूम है उसकी वजह से the employees also that I hire are comfortable to join me. So as a business person myself, I can tell you it's a very big factor कि आपके वॉशरूम में एक अटैच, आपके ऑफिस में एक अटैच वॉशरूम होना कितना बड़ी बात है. Down the line, if at all Stanza leaves, it is an advantage to you कि आपका office space even in this ticket size comes with an attached washroom. Abhijit sir is asking if it can be more interactive session rather than typing questions to chat. Abhijit sir, I'm really sorry. We used to do that earlier, but वो बहुत chaotic हो जाता था. It was very difficult for me to one by one let people talk and then come to answers. Right now, the way I when I answer people one by one as a Q&A, it is much easier for me to address people. It makes it easy for me to go question one by one and not miss out on any questions. Pratik sir is asking commercial project investment is eligible to tax exemption. So Pratik sir, again, because this is sanctioned as R1 as a residential, you will be available to, you can claim tax exemption on it. Since the OC and loan will be commercial loan, commercial project investment. So this is not a commercial loan. Again, this is the loan also will be is going to be a home loan. It is sanctioned from SBI. The home loan rate of interest is going to be, right now it is around 7%. Anuj sir is asking if I can share the payment options once again. So just a second, I'll just do that. I'll just come to that screen so that it is easy. Hi, are you still dependent on the single income? No EMI till purchase. So I have shared that with you on the screen, Anuj sir. In fact, everyone can see that. Just to quickly run through it once again, if you're making 90% down payment today, you get your rental starts immediately. Balance जो 10% है वो आपको possession पे देना है. Your rent जो है, मतलब जो हमारा initial discussion है उसी के हिसाब से हर 3 साल में increment and everything will be applicable. The total lease period is going to be 10 years after possession. So आपका first 3 years will come from the developer. After that जो भी rental है वो Stanza से आएगा. That all things remains the same. उसमें प्राइस एडवांटेज ये है कि आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है लगभग, इफ यू सी 23.4 लाख ऑल इंक्लूसिव होता है, जो अदरवाइज उस यूनिट का प्राइस है 25.4. तो सीधा सीधा 2 लाख रुपए का आपको इसमें डिस्काउंट मिल रहा है अपफ्रंट 90% डाउन पेमेंट करने से. द अदर ऑप्शन इज सेल्फ फाइनेंस, जिसमें आपको अभी 5 लाख प्लस स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, बाद में आपको हर महीने 50,000 का एक SIP है और द नेक्स्ट टिल पोजेशन आपको हर महीने 50,000 पे करते रहना है. इसमें आपका रेंट विल स्टार्ट आफ्टर पोजेशन. एंड द थर्ड प्लान इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, 90% लोन लेके 2 लाख प्लस स्टैम्प ड्यूटी पे कीजिए, बाकी का आपका लोन से डिसबर्समेंट होगा. नो प्रीएमआई टिल पोजेशन, मतलब आपको कोई पोजेशन तक आपका इंटरेस्ट विल बी जीरो दैट यू पे, एंड रेंट विल स्टार्ट व्हेन द पोजेशन व्हेन योर EMI विल स्टार्ट आफ्टर द पोजेशन इज गिवन. Parag sir is asking how much maintenance charges do I need to pay? So Parag sir, for 10 years, that is after the possession, for the next 10 years, you don't pay any possession. That is the beauty. How can it be qualified for residential home loan? Can we claim interest and principal and income tax? So Mr. Giri is asking if this is residential home loan, because this is sanctioned as R1. This is sanctioned as a residential property.
That's why you can claim interest as well as principal waiver in the income tax. Vishal sir is asking how about the after 10 years ka rental income. So Vishal sir, first of Vishal, Mr. Gaurav, I think a lot of people have asked this. I would not name, but I can tell many people have the same question. What after 10 years? So there are two ways to answer this question. The first thing is कि सर 10 साल मतलब आज से 13 साल बाद का हम चीज पूछ रहे हैं. Let me tell you one thing. एक बिल्डिंग में 800 बेड्स है, 400 यूनिट, 800 बेड. उसमें से अगर 50% भी मैं ऑक्यूपेंसी पकड़ू उस समय में, तो भी 400 लोग उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई किए हुए होंगे. कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि जब 400 लोग वहां पे रह रहे तो मैं वो छोड़ के नया कोई प्रॉपर्टी ढूंढ लूं. दैट इज द लॉजिकल थिंग. इस बिजनेस मतलब पुणे में अगर आप कोई भी हॉस्टल बिल्डिंग से हॉस्टल बिजनेस से बात करो, यू विल सी दैट दे वंस दे ऑक्यूपाई अ प्रॉपर्टी, वो बिल्डिंग 20-20, 25-25 साल तक वैसे ही उसी एक ऑपरेटर के पास रहती है. नो वन लीव्स पीजी ऑपरेशन बिल्डिंग्स, क्योंकि आप लोकेशन को देखिए, आसपास में स्कूल्स कॉलेजेस ऑलरेडी है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी बन रहा है. सो व्हाई वुड समवन लीव? Even if in the worst case, चलो Stanza company ही survive नहीं कर पाते for whatever XYZ reason, they are not able to sustain the business. If they leave, there are so many players in the market जो आप as a body of investors, 400 लोग हैं जो सब investors हैं. All of you want to earn rental out of it. आप as a body एक property consultant hire कर लेते हो ना, तो 3 महीने के अंदर वो आपको पूरा building lease out करके दे देगा. I have been in the industry, I have been doing this job. I know companies which are into the business of co-living. I can tell you कि they are always on the hunt of good properties in prime locations. And this kind of location तो मतलब it's a no-brainer कि कोई भी कंपनी नहीं छोड़ना चाहिए. तो believe me, 10 साल के बाद में वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो छोड़ के जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे. Secondly, we are speaking of 13 years from now. जब तक पता नहीं आप खुद वो प्रॉपर्टी होल्ड करोगे क्या. It is possible कि आपने उस चीज को 7 साल में 8 साल में बेच दिया. That is also one of the possibilities. So I would looking at 13 years from now is a very long time. हम लोग अभी अगर आप बात करेंगे तो अगले 6-7 साल में भी इस चीज में से जो रिटर्न है वो लेके आप एग्जिट करोगे तो भी एडवांटेज में. Gaurav sir is asking what is the unit size in fits. Sir, the carpet area is 185 square foot, sellable area is 275 square foot. Swapnil sir is asking the possession time and expected possession date. So as per RERA, the possession is March 2024, that is 3 years from now. But the target date for possession is going to be December 23 for both of the both of the projects. What if the standard defaults? The spaces we bought is neither 1 BHK or office, will property be rendered useless? Sir, first of all, standard default करने के लिए अगर it's a very low probability because the way they are occupying properties, they are doing it after a huge market research. One of the big company, मतलब ये कंपनी के लोगों से मैंने खुद इंटरेक्ट किया है, सो मैं बता सकता हूँ कि they have a dedicated team for market research who analyzes demand and supply for the years to come. कोई भी बस ऐसे उठ के कोई प्रॉपर्टी 10 साल के लिए रेंट पे नहीं लेता सर. एंड स्पेशली दिस कंपनी डज लॉट ऑफ थिंकिंग बिहाइंड दैट व्हेन दे आर कमिटिंग यू समथिंग. सेकेंडली, व्हेन यू से will this property be rendered useless? Sir, this is not a 1 BHK that I agree, but this is a office. This is a very small office which is, अगर आप सोचते हो कि छोटे जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, CAs, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स जो मैंने बताया, इन लोगों को इस टाइप की ऑफिस चाहिए. मेरी खुद की कंपनी इज अ वेरी स्मॉल टीम. वी नीड अ स्मॉल ऑफिस. वी डोंट नीड 500-600 स्क्वायर फीट का ऑफिस या 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस. हर किसी को नहीं लगता है. देयर आर सम पीपल हु नीड स्मॉलर ऑफिसेस. आप सोचिए, आप मोबाइल रिपेयरिंग या अपने कोई भी मोबाइल के सर्विस सेंटर्स होते हैं, जब आप इनके ऑफिस में जाते हो, दे आर नॉट शॉप्स ऑन द फ्रंट स्ट्रीट. दे आर नॉट वेरी बिग ऑफिस स्पेसेस. दे आर स्मॉल स्पेसेस in some commercial building. That is, there are all kinds of people. No property is ever useless, sir. It is all about whom you approach to get it leased. And I assure you, कल को स्टैंडा डिफॉल्ट करते हैं तो आप 400 लोग मिलके उस चीज को वापस लीज आउट कर लोगे, क्योंकि everyone here has that concern. Everyone is an investor. No one is an end user. अब 1 BHK लोगे, वो खाली करेगा तो कोई मदद करने नहीं आएगा आपको उसको लीज आउट करने, क्योंकि बाकी कोई एंड यूजर हो सकता है. बट जब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो सारे इन्वेस्टर्स हैं, सबको जरूरत है. एज अ बॉडी यू विल बी एबल टू फाइंड अ कंसल्टेंट हु लीजेस इट आउट फुल. एंड दिस वी आर स्पीकिंग इन अ वेरी वर्स्ट कम सिनेरियो जब स्टैंडर्ड सर्वाइव ही नहीं कर पाता. Rahul sir is asking what happens in case I want to use the property after 3 years. So Rahul sir, as I said previously in the FAQs कि ये property 10 साल के लिए leased है with Stanza. So no, you cannot use it for self purpose because we are keeping it for people who are looking pure investors, not for end use at all. What kind of furniture are you mentioning? Can you please elaborate? So furniture is very simple, sir. Every room has 2 beds, wardrobes. They have study tables and all the. They have some
इलेक्ट्रिक केटल्स एंड स्टफ लाइक दैट. बेसिक एक जो हॉस्टल के अंदर होता है बस उसी टाइप का फर्नीचर होता है. Is there any processing fees which we have to pay Stanza? So no, there is no processing fee, there is no hidden cost into it. जो भी मेरा पैकेज प्राइस मेंशन्ड है which varies from अगर मैं मतलब ये टाउन सेंटर की बात करूँ तो 23.4 से तो 27 lakhs तक, and for ग्रैंड सेंट्रल इट इज 22 lakhs से तो 25 lakhs तक. ये पैकेज includes everything. There is no other charges mentioned, I mean hidden here. What is the lock-in period with Stanza? So 10 साल के एग्रीमेंट में 3 साल का लॉक-इन है, which is a very standard practice. 3 years का लॉक-इन plus 3 years पे जो इंक्रीमेंट रेंटल इंक्रीमेंट है, that is the standard practice which we are following. What if I want to sell it after 3 to 4 years? Totally, you can sell it. You can sell it anytime after possession. Do you have brochures? Can we see the details? Of course, you'll be getting brochure as soon as this webinar is over. You'll get brochures on email. All of you can check your emails. Within an hour's time, we'll reach out to you with the detailed presentation. Mr. Kunal is asking any same project in near or in Kharadi. So Kunal sir, right now, so there is nothing like that. And personally, I feel कि ये ऐसा investment है जो मतलब I have people investing from Chennai, Delhi, even someone who is in Qatar and someone who is sitting in UK. So it really doesn't matter where this investment is. आप ये सोचिए कि इस लोकेशन में ऑलरेडी जो आज प्राइस है उसका अप्रिसिएशन कितना होगा. खराड़ी एज अ लोकेशन ये चीज मैं लाने जाऊँ वहां पे तो 40 लाख का प्राइस आएगा, क्योंकि लैंड इटसेल्फ इज सो कॉस्टली, द एरिया इज सो डेवलप. छोटे से छोटा साइज में निकालना है तो भी वो कम से कम 35-40 लाख हो जाएगा. इस लोकेशन में अप्रिसिएशन का स्कोप है. खराड़ी में यू कैन सी द इओन IT पार्क एंड WTC टुडे. द सेम थिंग इज कमिंग हियर इन वाकड़. अगर आपको मैं बोलता 10 साल पहले खराड़ी में इन्वेस्ट करिए जब वहाँ पे WTC और ये नहीं था, तो शायद आप तब सोचते, तब मतलब आज आपको पता है कि वहाँ पे 10 साल पहले इन्वेस्ट करना चाहिए था. द सेम चीज इज एप्लीकेबल हियर, क्योंकि आज से 10 साल बाद यहाँ पे जब ये पूरा ऑपरेशनल होगा ना, समवन माइट बी आस्किंग मी कि कुछ वाकड़ में है क्या इन्वेस्टमेंट करने के लिए नियर बाय टू द WTC. दैट इज ऑलवेज द केस. यू आर लुकिंग एट थिंग्स टुडे, whereas I am telling you or giving you the vision of 10 years from now, which is to be invested today. The real estate has to be invested जब वो अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है. अगर आप डेवलप लोकेशन में लेने जाओगे तो आपको आगे चल के उसमें अप्रिसिएशन क्या मिलेगा. Anuj sir is asking ki no details of no EMI till possession please. So I hope you can see it here sir. Just to give you a clarity of that, आप आज 4 लाख रुपए पे करके you are doing agreement and booking the unit. उसके बाद possession तक जो भी आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, जैसे अभी आपका लोन डिसबर्समेंट होता है तो उस पर आपको एक इंटरेस्ट EMI शुरू हो जाता है. That EMI will be reimbursed by the developer. So possession तक आपके जेब से effectively you are not paying anything. Whatever amount you pay is going to be reimbursed by the developer. Kiran sir is asking what kind of tenants will we share this to? So mostly this will be either college going students or it will be working bachelors in the age group of 20 to 25. Most of the Stanza का जो अभी उनके जो occupiers हैं, most of them are of this age group between not 20, I would say 18 to 25 के age group के लिए maximum. If I want to purchase but don't want to give on rent, so why would you want to do that? I mean, there are so many properties out there which have this option, but then you are sitting here because the beauty is कि आपको rent यहाँ से assured मिल रहा है. If you don't want to give on rent, what would you do with it? I mean, you cannot occupy it yourself. You cannot lease out to someone else. तो सिर्फ रख के क्या करेंगे? Rather, it is better you earn a rental out of it. When is the possession? So I've already answered March 24 as per RERA, but the target is December 23. Your rental will start as soon as the possession is handed over to you. Can we see sample flat? Akshay sir, right now there is no sample flat, honestly, because there is nothing like a sample. It's, if you can imagine a hotel room, this is just similar to that. I can show you the layout plan once again, but there is no sample flat as such, because ऐसा चीज की मतलब इसका sample flat बनाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ा, honestly speaking. Let me see if I can show the layout once again. So this is the layout. This is the entrance. Entrance के side में यहाँ पे wardrobe space है. On the right hand side, you can see a washroom of almost 35 square feet, and then there is a room of 10 by 12.5 square feet. तो ये typical एक hotel room की तरह ये apartment है. In future, अगर आपको लगता है इसको office space में convert करना है, you probably don't need a shower space, तो आप ये wall को break करके इसको और छोटा कर दीजिए. आपका washroom छोटा हो जाएगा and you get a bigger office space, sufficient for 4 to 5 people का team, which is what a normal professional right now does. Darshan sir is asking what if Stanza is not able to pay rent right now, OYO doing even after agreement. So Darshan sir, very good
topic that you brought up because I want to point out the difference between Oyo and Stanza. Oyo is a hospitality company. Oyo का भी एक wing है Oyo Life, which is into the co-living industry. And if you look at Oyo Life, they are doing really good. Oyo Hospitality is suffering simply because hospitality industry ऐसा है ना कि आदमी एक दिन या 2 दिन के लिए check in करके निकल जाता है. You have to find new occupier on a daily basis. But co-living is something जहाँ पे एक बार कोई आता है तो वो 2-2, 3-3 साल तक वहाँ से जाता नहीं है. Each of these companies, Stanza, Co-live, Zolo, Oyo, there are 15 different companies जो हमने जो एक हमारा sample agreement आपको जो होगा इसमें, उसमें you will find उसमें सबके नाम भी लिखे, so that कल को Stanza चले जाता है तो after that what to be done, आपके पास already वो list है जो उसके competitors है जिसको आप approach करके lease out कर सकते हो. So there has been a very deep evaluation by the developer also. I really appreciate that from VJ team कि उन्होंने उसको काफी अच्छे से evaluate किया है पूरा proposal, and after that only they have chosen Stanza to go ahead with Stanza. Apprehension about how the property will be maintained in future considering the Indian scenario where maintenance takes stage back. Anuj sir, this happens because every occupier is finding a tenant separately. अभी आप सोचिए यहाँ पे Stanza का main business depends on how well the property is maintained. अगर वो property maintain नहीं है तो उनको खुद को occupier ढूंढने में दिक्कत होगी. The maintenance is going to be taken care by Stanza for the very same reason. अगर वो ये चाहते, वो बोलते कि आप owners के ऊपर maintenance दे दो, हम नहीं करेंगे. But ये चीज होता है कि जहाँ पे owners involved in maintenance में properties do not stay well maintained. That is precisely why Stanza understands कि उनका business depend करता है property कितना अच्छा maintained है, and why they are taking the responsibility of the maintenance of this property. So you be assured Stanza का खुद का performance depends upon the maintenance of that property. That is why they will take care of the maintenance as long as they are occupying it. उसके बाद में either someone else will come into picture, they will take care of the maintenance, or you as a body are going to take responsibility. But जब तक वो है तब तक तो आपको चिंता नहीं है. Who is going to who do the minor repair works of property such as painting, minor structural repair? So painting वाला जो part है, internal painting वगैरह ये सब तो Stanza का responsibility है. They are going to take care of that. कोई structural repair का नौबत आता है तो रेरा के हिसाब से तो पहले 5 साल खुद डेवलपर रिस्पॉन्सिबल है पोजीशन के बाद. सो यू बी अश्योर्ड रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, वहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा. और अगर पहले 5 साल तक कोई स्ट्रक्चरल रिपेयर नहीं आया ना, आई कैन टेल यू जावड़ेकर एज अ डेवलपर आई हैव सीन देम. एक तो ये वैसे भी पूरा माइवर कंस्ट्रक्शन रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड आफ्टर दैट आई हैव सीन देयर वर्क, दे हैव नेवर स्ट्रक्चरल कॉम्प्रोमाइज होता ही नहीं है इनके पास. So I can tell that because I am a civil engineer myself whose first job was working with Javadekar. I am associated with them from that long. Government benefits can we get in first time property purchase? Sir, PMAY, if you are talking about, so that is not available for this. Kiran sir also asked the same question. PMAY available नहीं है क्योंकि उसका minimum जो criteria है carpet area का, that is not matching here. That is why it is not applicable. So the only option for property is to sell someone, neither we can use it nor can give it on rent. Sir, the point of buying this property is to earn rent out of it. If you want to use it, there are so many other options. If you want to give out to rent on someone, again, there are so many options out there, but they are not giving you this kind of assurity, this kind of returns. Risk उसमें इतना ज़्यादा है, right? The point you are investing here is for the rent. It's not like कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ rent कमा सकता हूँ. The beauty is कि आप रेंट कमा सकते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. आपको बस इन फ्यूचर अगर कभी लगता है कि मुझे कुछ आई वांट टू अर्न या गेट सम फंड्स नाउ या लिक्विडेट करना है तो आप उसको तब बेच दीजिए. बाकी आपको इसमें कुछ करना है भी नहीं. दैट इज द ब्यूटी. योर पर्सपेक्टिव, आई एम जस्ट ट्विस्टिंग इट अराउंड. इट्स नॉट कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ रेंट कमा सकता हूँ. इट्स मैं रेंट कमा रहा हूँ, मुझे और कुछ करने की जरूरत भी नहीं. Is this payment full package? Yes, sir, this is full package. Nitish sir is asking this. Someone asked me, I missed that while scrolling, that what is the booking process? So the booking process is entirely online. After this call, you can connect with me or Nilesh from my team, and we can guide you on how to go ahead with the payment, with selection of unit and everything. So as soon as we finish with the presentation, you can connect with me over a call. Last time your representative told me the loan will be commercial loan, commercial project investment is eligible to give. Pratik sir, I'll clarify the confusion. We have had total 4 projects. One of them was Happiness Street, which was sanctioned as commercial. That is why the commercial loan over there. All the rest of the 3 projects are sanctioned as residential. That's why the residential loan.
I don't know when you spoke to my representative, but it might be because one of the projects is commercial, and it might be that he or she might be telling you about that project. What after 10 years? I've already answered this sir कि 10 years के बाद में एक तो ये जरूरी नहीं है कि स्टैंडा छोड़ेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी छोड़ के जाने की किसी की इच्छा नहीं होती है. दूसरा ये कि देयर आर 10 अदर ऑक्यूपायर्स रेडी टू टेक अ प्रॉपर्टी लाइक दिस ऑन लीज. एंड तीसरा ये कि जरूरी नहीं है कि आप खुद 10 साल तक होल्ड करो. यू माइट सेल इट इन बिटवीन. 15% hike every 3 years. Sorry, I missed this. Can you also share SBI loan agent details? Definitely, we'll connect with the whoever is interested for loan. We'll connect you with the SBI person. As this project is residential project, will I get PMEY? No, sir. PMEY is not applicable. Again, as I mentioned, the size is too small for us to avail PMEY benefits. Who will decide the selling price of my property? Of course, it will be your choice. Your unit, you decide. आपको लगता है मुझे इसमें 40 लाख में, आपने पोजीशन लेके बोल दिया कि मुझे 30 के नीचे नहीं बेचना है, तो your call. Because you are free to sell, right? It's not कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर किसी और का कोई राइट है. Stanza is just a tenant. आज आप कहीं पे 2 BHK खरीदते हो और आप उसको बेचने का डिसाइड करते हो, तो वहां पे रहने वाले टेनेंट से थोड़ी ना पूछते हो कि मुझे कितने में बेचना है. It is just like that. It's just that यहाँ पे आप एक Stanza नाम की कंपनी को दिया है rather than giving it to an individual. Rahul sir is asking what happens to rent in COVID-like scenario. Sir, we are in a COVID-like scenario. In the during the COVID-like scenario, only Stanza is assuring you this rent. So I can tell you कि ऐसा नहीं कि ये COVID को factor in नहीं किया है उन्होंने. When we are coming up with this launch, we are already living in the COVID era. ये consider करने के बावजूद they are coming up with this scheme and with this offers and everything, because their analysis has been कि जो COVID का impact है, that is on a very different kind of people than the people who are occupying their properties. यहाँ पे जो इफ यू आर फ्रॉम पुणे, यू माइट बी नोइंग दिस कि हिंजेवाड़ी में अभी भी जो मतलब करंट लॉकडाउन छोड़ देंगे तो अगस्त से लेके अभी मार्च तक जो भी लोग ऑफिसेज में जा रहे थे, दे वर ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25, यंग बैच, न्यू जॉइनिंग्स, बैचलर्स, ये लोग हैं जो अभी भी इस टाइप के प्रॉपर्टीज में रहते हैं. स्टैंजा हैड गुड ऑक्यूपेंसी थ्रू आउट द कंट्री ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, क्योंकि वो खाना वगैरह सब प्रोवाइड करते. दे आर नॉट जस्ट गिविंग अ स्पेस, बट उनके साथ में उनका मील फैसिलिटी भी उधर ही होता है. सो पीपल, आई मीन यूजुअली नो वन वांट्स टू लीव. सारी फैसिलिटीज है, वाईफाई से लेके तो गेमिंग रूम से लेके, यू हैव द सेम काइंड ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर. तो आदमी घर जाता भी है तो वापस आ जाता है, क्योंकि घर में कितने दिन रहेगा आदमी. I had a poll that I wanted to share with everyone. Unfortunately, I could not do that while the webinar. But I wanted to understand from everyone कि ये what is their sentiment. I have spoken to so many people who have this thing कि यार हम कुछ महीने रहे, enjoy किया घर पे, but now we want to go back to our life that we had in Pune, because work from home for the long run is not health benefit. I mean, it's not beneficial for your personal health as well. I mean, your psychological health. What about the food arrangements? Anup sir, just like I answered right now, Stanza provides the food. They have a common dining facility from where they serve food to all the occupiers in their property. 15% hike is going to be Stanza in a assured one, or it may vary. So 15% hike is assured because आपकी एग्रीमेंट में मेंशन्ड है, 10 साल के एग्रीमेंट में ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है कि हर 3 साल में 15% रेंट एग्रीमेंट का रेंट बढ़ेगा. Kitchen, Akshay sir is asking if there is a kitchen facility. There is no kitchen inside the room because जो bachelors का dining वगैरह होता है वो common facilities से होता है. There's going to be a small electric kettle for some kind of Maggi या ऐसा कुछ बना लिया, but there is no kitchen within each of the properties. How much down payment in case I go with loan option? So minimum is 4 lakh rupees. उससे ज़्यादा जितना आप करोगे that is up to you, but minimum 4 lakh rupees में आपका down payment होगा. 4.5 approximately. 4 से 4.5 lakh. If I won't get the property to use for myself, how can I modify the interior property in future? Sir, see, you can get it to use if Stanza leaves. अगर Stanza छोड़ के जाता है तो आपका प्रॉपर्टी आपका है. आप मॉडिफाई कब करोगे? जब Stanza छोड़ के जा रहा है तब. So exactly, until Stanza is occupying, you cannot use it. After they leave, of course, you can use it for your own purpose or for whatever purpose. Like I mentioned, आप architect या किसी भी professional को lease out कीजिए. But ये सब तब होगा जब Stanza छोड़ के जा रहा है. Until then, you don't have to worry about that, right? Any parking space allocated? So parking will be open but not allocated or sold to anyone right now, because Stanza का जिस तरह से requirement है उस तरह से हम लोग parking space बेचते ही नहीं है इस units के साथ में.
However, there will be enough parking created for everyone, and stickers will be given to each of the owners so that whenever you come here, you can park your vehicle. In case of illegal use by flat by tenants, who will take responsibility? Is this covered in agreement? So yes, illegal use of flat by tenants is covered between the agreement of Stanza and their tenants. So वो responsibility Stanza का है. It is not your concern. I mean, you don't have to worry about that. They take that responsibility when they are letting it out to individuals. All of these things are taken care by them themselves. Deepika ma'am is asking, will I own the property? So yes, ma'am, 100% you are the owner of this property. आपका proper registration होगा. You get an index to on your own name. So it's there's no doubt about ownership of the property. If I go for 90% option, when does the rent start? Immediately as soon as your agreement happens, which will be in the next month. आपका 90% पेमेंट आ गया, एग्रीमेंट हो जाएगा तुरंत एग्रीमेंट के बाद में आपका रेंट शुरू हो जाएगा. What if Stanza doesn't survive 10 years? Sir, we don't, I mean, right now we can't predict whether they'll survive over 10 years, like you rightly pointed out. But what I can tell you is that the business model will definitely survive longer than that. अगर आप देखोगे पुणे में, मतलब I think पेट में भी कुछ पिछले 70-80 साल पुराने पीजीज अभी भी फंक्शनल है. Because Pune as a city is known for education, it is known for IT hub. Both of the things because of which every year thousands and lakhs of new people come into the city looking for spaces which are affordable, which are kind of like a hostel or a co-living facility की requirement ही उतनी है. तो Stanza नहीं भी survive करता है ना, ये business model is always going to survive. You can always find different people like, different companies like Stanza who could go ahead. There are companies like Zolo who have survived in this business for the last 10 years, more than 10 years. Stanza को अभी खुद 4 साल हुआ है, लेकिन जिस तरह से वो grow कर रहा है, they are getting immense funds. They are the #1 company in student hostels, just for information. Currently across the country, they are the #1 company. So it is a very well established, comes from the founders are ऐसा नहीं है कि college pass out से जिन्होंने company start कर दिया था, startup चालू कर दिया. They are experienced people who have been in the industry for a very long time. After that, they started this. So your concern doesn't, I mean, you don't have to worry कि इसमें Stanza नहीं survive किया तो मेरे property का क्या होगा. Even if nothing else works out, sir, आपका property आज IT पार्क्स के 400 मीटर के डिस्टेंस पे है. यू रियली थिंक कि वहां पे आपको एक बैचलर या 2 बैचलर्स नहीं मिलेंगे जो आपका प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई नहीं कर सकते? आज पुणे में अगर आप 1 BHK या 2 BHK रेंट करने का सोचते हो तो उससे तो कहीं आसान नहीं है प्रॉपर्टी लीज आउट करना, क्योंकि आपको एक ही आदमी ढूंढना है, एक या मैक्स 2 लोग ढूंढना है. Swapnil sir is asking, to whom am I paying the money? VJ, Stanza, bit confusing. So you are paying money to VJ. The development is from VJ. Your agreement to sell happens with Vilas Javadekar. Stanza is a tenant जिनके साथ आप एक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट साइन करोगे, which is going to be a completely separate transaction. आपका जो एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट टू परचेस will be with VJ, एग्रीमेंट टू लीज will be with the Stanza Living. Any other questions? I think I've ran out of the questions right now. I think most of them have been answered. Just a second, scroll back once again. There are some questions in chat, I think. Let me see that as well. Can we visit the property? What's the current status? It's just recently launched. You can visit if, I mean, looking at the lockdown situation, I'm not sure will we be able to allow a site visit right now. But of course, once the lockdown is over, you can come down and visit. However, I would not suggest to wait for booking until then, क्योंकि जो price, unit availability and the offer of no pre-EMI, ये तीनों चीजें तब तक शायद होंगे या नहीं, that I cannot assure. अभी हम लोग ये यूनिट प्रेफरेंस आपको दे सकते हैं, आपको प्राइस का ऑफर का बेनिफिट दे सकते हैं, चॉइस आपको यूनिट की मिल सकती है. देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ बुकिंग ऑनलाइन, एंड बिलीव मी, देयर इज नो सच थिंग कि आप आने के बाद में डिसअपॉइंट होगे, क्योंकि साइट पे आपको सिर्फ लोकेशन ही देखने मिलने वाला है, जो चीज मैं आपको ऑनलाइन पे दिखा सकता हूं. Is there anything else that I have missed out? Please post it on the Q&As. I would like to address before I exit the presentation, and then we reach out one-on-one, where my focus is only going to be on trying to select a unit for you and close it out. I think there are still few people. Gaurav, so I'll just unmute you. You can ask your question. Because now the number of people are less, so I can afford to unmute you. Gaurav, sir, go ahead. You can ask your question.
Hello. Hello. Yeah, Gaurav, बोलिए. My question is, what about after, let's say if I wanted to rent someone else, or what or should I wanted to use myself then? So as I said, until stanza is there, तब तक तो आप इसको rent out नहीं कर पाओगे. Okay. Because that is the agreement between you and stanza कि उनको पूरे 400 यूनिट मैनेज करना ही आसान होगा. No, I am talking about after 9 years or 10 years. After, of course, then you can do, you can lease out to whoever you want, or if you want, you can use it yourself. After stanza use, it is up to you what to do. Okay, yeah, that's the question. Yes. Anyone else has any other question that you want to ask before I end the presentation? Yes, Nitesh sir, बोलिए. So my question is basically, see what happens if after 10 years, a stranger doesn't want to continue, or maybe where they want to continue. So take a scenario, they want to continue and they want to again sign a lease agreement with us. But at that time, half of us, we don't want to lease with them and we want to run it up by ourselves or maybe rent it out by ourselves or something. So Right. what scenario would be dealt? Sir, that is a decision of you individual. Okay, as a society की आपकी 400 लोगों की society की body है. You first of all as a body decide whether you want to go ahead with stanza या individually rent out करना है. अगर आपको नहीं लगता है करना है continue, because जैसे अभी हम एक society में रहते हैं तो हर society के अपने बाय लॉज होते हैं. Society decides कि हमें किसको rent out करना है, किसको नहीं करना है. Every society has that right. Residentials में. So similarly यहाँ पे आप उस समय में as a society you can define कि हमें आगे क्या करना है. हर किसी ने अपना अपना individually करना है. या जिसको स्टैंजा के साथ जाना है वो जाए, whatever it is, society's decision. Neither I nor Javadekar is responsible or in the position to comment on that today. Okay, so in that case, go by myself. I mean, might be this stranger were doing all this maintenance and right, all the furnitures and all. So what will do that, right? Will they So take furniture of course they'll take it back, because अभी वो अगर उनका investment है तो when they leave they will be taking it back. मेंटेनेंस का ऐसा है कि ऑफ कोर्स जब आप खुद उसको रेंट आउट कर रहे हो तो मेंटेनेंस का रिस्पांसिबिलिटी भी उस समय में आपका खुद का ही रहेगा. and that will be based on then who will be maintaining? That's what my question is. Like there would be society, I understand, but you the same time you said that it is not kind of a residential where we have a cooperative society and where we maintain all the right. So as I said sir, मेंटेनेंस स्टैंजा का रिस्पांसिबिलिटी है. ओनर्स का सोसाइटी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको आगे चल के when I mean anywhere a body होगा ओनर्स का to deal with स्टैंजा. आगे आपको अग्रीमेंट रिन्यू करना है, कुछ भी इश्यूज होता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए आपकी एक बॉडी है, बट मेंटेनेंस इज नॉट योर हेडेक. वो स्टैंजा खुद करेगा. नहीं that वो मैं कुछ समझा मुझे. What I'm saying is अभी 10 साल के बाद के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ मैं. Basically कि अभी some people have rented out again with the stranger. Some people have decided now they will want to work their own. So then as an overall property, as an overall society, or as an overall building, the common area, lift, whatever it is, who will be maintaining those things? Personally, this is my personal opinion that I feel कि ऐसा होगा नहीं कि आधा प्रॉपर्टी स्टैंजा ले रहा है, आधा आप खुद मैनेज कर रहे हो. Stanza, if they want to continue, not just stanza, I'm saying in general, any company, they would prefer to have the entire building or not lease at all. क्योंकि क्या होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि 10 फ्लोर आपके पास स्टैंजा के पास है और 10 फ्लोर आप नहीं दे रहे हो या 3-4 फ्लोर नहीं दे रहे हो. स्कैटर्ड रहेगा. कोई आपने दिया, आपके बाजू वाला बोलता है मुझे स्टैंजा को देना है, फिर उसके दोनों लेफ्ट राइट वाला बोलता है कि नहीं मुझे खुद ले आउट करना है. तो कोई भी ऑपरेटर को वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन दैट केस. That's why any operator that I feel would either go for the entire building or then not go at all. Practically, that is my perception. That is the way I look at this engagement. Okay. Okay, I think that's what. Thank you. Thanks for asking this question. Anyone else? Okay, there's one question: inventory availability. So Anup sir, as soon as this call is over, we can connect in person and I can share the live inventory with you on one-to-one basis. Amenities की बात करेंगे. Okay, there are some basic amenities. There is no such society level amenities जो हम बोलते हैं वैसा नहीं है. जो उनका आप you can see यहाँ पे एक podium level पे there will be some amenities and of course terrace level पे भी there will be some spread out amenities which are basic games room वगैरह ऐसे टाइप का, walking lawn वगैरह ऐसा. There's not going to be a clubhouse, swimming pool वगैरह, ये सब नहीं रहेगा.
I think all the questions are answered now. Again, I request you to please ensure that you fill the survey form after after you end this webinar. And thank you very much for joining us. This actually was planned for just half an hour, but I think हम लोगों ने इसको पूरा 1.5 घंटा खींच लिया. तो and you were patient enough to stay with us for 1.5 hours. So thanks a lot, everyone. Let's connect on a one-to-one basis and come to a conclusion as soon as possible. Take advantage of the inventory preference today, क्योंकि लास्ट वेबिनार व्हेन वी कंडक्टेड दैट, उसके बाद में 2 दिन में हम लोगों ने जिस तरह से बेचा है, तो दिस हैज हैपेंड विद मी कि एक आदमी बोल रहा है ठीक है मुझे ये पर्टिकुलर फ्लोर का ये लिफ्ट के बाजू वाला यूनिट चाहिए, बट बिफोर दे कुड टेक अ डिसीजन वो वाला यूनिट चले गए. एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन विद यू, बिकॉज व्हेन यू आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, हम लोगों के कुछ एक व्हेन वी मेक अप अ माइंड कि मुझे ये पर्टिकुलर यूनिट चाहिए और वो चले गया, तो वो पूरा it starts to feel little bit of a depressing kind of an emotion, which is not the right note to start when you're investing. So I request you to be very fast in making your decision, select your unit and go ahead with the booking. Booking is entirely online. You'll be transferring the booking amount to VJ developers directly to their account. And we can connect, I mean, of course we can discuss with their team person also on the call. Siddesh would be there to help you in closing the transaction. And let's go ahead and finish this. Thanks everyone for joining in, and let's connect on the call again. Thank you, Karan. Thanks. Thanks, Siddesh, for being a part of this. Sure. Thank you.